Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is again a content related to the class 9 students. Those who have just went to class 9, very congratulations went that you have cleared your class 8 and moved on to the next class. So first let me introduce myself. I am currently an MBBS student from a medical college in Kolkata and I have scored 90 I have scored 96.7% in my class 10 examination, board examination. And in that examination, I have scored 99 out of 100 in my science subject. This science that I'm teaching you right now. So I will explain you how to approach the subject in your class 9. Yeah, uh, it's a very dangerous, or rather, I would say, it's a very distorted type of phase that you don't know what to do, from where to do, and how to do. So for that, you must need a guide, and I think I am a right person or eligible person to tell you because I have told you my credentials and all. Okay, so without wasting any time, let's move ahead. I have made a previous video on how to tackle your biology, or rather how to learn NCERT and retain it. So you must watch that video. That is, which is there in my channel. So, and one thing more I want to add that this is not at all a scripted video or not at all with a edited video. It is completely unedited content that you are having on your YouTube. So feel free to comment on the things and if any kind of help possible by me, I will surely help you guys. So now it's 2 a.m. in the morning and I haven't slept still now. So I will make this video and then I will go for my sleep. So I'm destroying my night sleeps without crying, but so that to make your nights good when you are in your class 9. So you're in the next year, so the upcoming year that you are having in your life, so that you sleep well in your night. You don't cry in your nights, struggling with physics, or struggling with biology, or struggling with chemistry. So I'm there to help you out. So if you find the content good or helpful to you, please do please do subscribe and share the channel. Most important thing is sharing the channel. तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एक लाइक तो बनता ही है यार अगर कंटेंट समझ में आया और अच्छा लगे ठीक है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे पास टाइम कम है वही जल्दी जल्दी करते हैं देखो सबसे पहली बात तो आपको अगर फिजिक्स सीखना है भाई आपको सामने में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए दिख रहा है ये मैंने पहले आपके लिए लिख रखा है ये कोई पढ़ाने वाली चीजें नहीं है ठीक है ये आपके कंटेंट जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उससे पूरा बाहर है ये चीज बट यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरे को पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट हाँ अगर मैं आज आधा घंटा तुमको पढ़ा रहा हूँ ना मतलब बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसके पहले मैं 10 मिनट और 5 मिनट में इंट्रोडक्शन इसीलिए दे रहा हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट को बिकॉज ये डिपार्टमेंट आपके लिए कम्प्लीटली एक नया डिपार्टमेंट है दोज हु आर इन सीबीएसई ठीक है those who are from ICSE they might be knowing or if they are not knowing they should also learn from this video that आईसीएसई का तो क्लास 6 से फिजिक्स हो जाता है बट और उन लोग का काफी 2 साल शायद आगे ही चलता है ठीक है हाँ मेरे को लगता था 2 साल आगे रहता है उन लोगों का कंटेंट तो उन लोगों को कुछ चीजें पता होती तो उनके लिए हल्का इजी होगा चीजें when they go from 8 to 9 and few people are there who shift from 8 to 9 8 में ICSE था 9 में सीबीएसई का उनके लिए इजी होता चीजें मतलब मेनली मेरा फोकस जो है वो है टू द पीपल हु आर फ्रॉम सीबीएसई एंड गोइंग फ्रॉम 8 to 9 सो ये आपको पहला चैप्टर कॉन्फ्रंट करने मिलेगा भाई मैंने एनसीईआरटी अभी तो आपके सामने खोल रखी है बट ये बायो नहीं है इसका अप्रोच अलग है यही आपको सीखना है अप्रोच सीख लेना है हर सब्जेक्ट को टैकल करने का सब्जेक्ट में बहुत मजा आएगा भाई और अगर अप्रोच नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट में तो मजा तो आएगा ही नहीं नंबर भी नहीं आएगा साथ में सब्जेक्ट रुलाएगा आपको ठीक है दिस वॉज द कंडीशन ऑफ माई मी नॉट इन साइंस एंड मैथ्स दैट वॉज द कंडीशन इन सोशल साइंस आई डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेल तो उस टाइम पे कुछ समझाने वाला था नहीं इस तरह का मतलब कोई एजुकेटर मेरे को सही नहीं मिला था दैट्स द रीजन आई वाज स्ट्रगलिंग विद द सब्जेक्ट you have to know how what is the process that you have to do every day so that your day before examination is a good day and you perform well in your examination so let's get started with the video guys so as you can see that small confused and regular steps will make you confident and proud one day
This is the thought that with which we are beginning the session. So what this thought says कि हर दिन अगर आप कंफ्यूज्ड भी हैं, बट अगर आप हर दिन छोटे स्टेप्स लेते हैं, मतलब रेगुलरली लेते हैं स्टेप्स को, तो वो स्टेप्स आपको फ्यूचर में जरूर जाके कॉन्फिडेंट बनाएगा और आपको अपने अपने प्रीवियस का मतलब प्रीवियस वर्क पे और अपने मतलब अपने प्रीवियस काम पे you will be feeling proud. मतलब you will be proud of what you have done in your latter period of your life, on your previous period of your life. Okay, so and the things that I have written here that must do things for physics for you are preparing for NEET, JEE, book boards, etc. I said I have cleared NEET, I have given JEE means examination, and I have went for the board examinations. तो मैंने को अच्छा सा अंदाजा है, मेरे काफी दोस्त हैं, तो अंदाजा है, ठीक है, इस सब चीज़ों का। मैं खुद स्ट्रगल कर चुका हूँ, मतलब देख चुका हूँ सब चीज़ों को, तो आपको मैं करेक्टली बता पाऊंगा। अब देखो भाई, यहाँ पे जो चीज़ आती है ना, वो है नोट्स। सबसे पहले जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठे, आप खुद से फिजिक्स पढ़ोगे, आपको नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी गाइस। वो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा मतलब गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनको समझ में आती है, तो उनके लिए उनको आप छोड़ दे भाई, उनको आप छोड़ दे। मैं यहाँ पे नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो नोट्स बनानी है भाई, नोट्स बनानी है। जो भी आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उससे उस टीचर से नोट्स लेनी है, या तो टीचर आपको नोट्स दे दे। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप जब टीचर पढ़ा रहे हो तो टीचर should make you write and you should write your own notes. That is the most important thing. अपना नोट्स बनाए, ठीक है। उसके बाद घर आते ही उस नोट्स को रिवाइज करें। सेकंड पॉइंट वही लिखा है, एवरी डे यू शुड हैव अ रिविजन ऑफ द नोट्स दैट यू आर हैविंग। पार्ट उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको उसके बाद अपनी एनसीईआरटी को उठानी है, ठीक है। ये बात मैं 9, 10, 11, 12 सबके लिए बोल रहा हूँ। आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है और आपको एनसीईआरटी से उस टॉपिक को रीड करना है, स्पेशली फॉर 9 एंड 10। गाइस वी हैव टू रीड योर एनसीईआरटी। उसके अलावा नहीं बच सकते हो फिजिक्स में, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अप्रोच समझो, यही अप्रोच, यही है मंत्रा टू सक्सेस, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको आके एनसीईआरटी को हर दिन नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी मैं क्या बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी हर दिन नहीं पढ़ना है। चैप्टर खत्म होने के बाद में यू गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक। आफ्टर दैट यू शुड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम साइड बुक, प्रॉब्लम्स गिवन योर एनसीईआरटी। देखो भाई, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स जो है डाटा चेंज करके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 9, 10 के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 11, 12 में बातें अलग होती हैं, पर फिर भी 11, 12 में भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बुक से, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। हम आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैक्सिमम ऑफ माय फ्रेंड्स हैवंट सॉल्व्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ऐसा कुछ आपको दिखेंगे, तो उनमें भाई एक तो मतलब लैग करेंगे आप लोग, वो मैं 11, 12 के लिए बोल रहा हूँ। 11, 12 में आप कुछ टॉपिक एनसीईआरटी से छोड़ सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता 11, 12 में, ठीक है ना? हाँ, तो इसीलिए बट 9, 10 में बहुत टाइम होता है, आप एनसीईआरटी को मत छोड़ो, छोड़ोगे तो भाई बहुत बहुत पछताओगे 9, 10 में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कीजिए साइड बुक से, एस चांद आता है, बहुत फेमस है, हम लोग के टाइम पे हम लोग ही पढ़ते थे। इसके अलावा आपका बेसिकली वीके जायसवाल वगैरह, मतलब वीके जैन या वीके जायसवाल ऐसा करके कुछ बुक आता है, ठीक है। वीके पांडे आता है शायद, है ना? देख लेने के बाद इस तरह के बहुत सारे साइड बुक्स आपके अवेलेबल है। दिलीप का साइड बुक अवेलेबल है, अरिहंत का अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स के साइड बुक्स अवेलेबल है। आप प्लीज जाइए, एक कोई एक साइड बुक उठा लो, जो देखो फ्रेंड्स जो यूज करे अपने टीचर से पूछो, अगर एक साइड बुक उठा लो, उससे जस्ट प्रॉब्लम्स करना है, क्वेश्चंस बनाने, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना, न्यूमेरिकल्स करना, न्यूमेरिकल्स बट आपकी जिंदगी में नया नया आ रहा होगा सीबीएसई के बच्चों के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, नया है तो क्या हुआ, पुराना हो जाएगा। हर चीज, बहुत कुछ लाइफ में नया आने वाला है यार, ठीक है। लाइफ इज मेड अप ऑफ न्यू थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न एंड थ्रू दिस न्यू थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपको ऑलवेज रिस्टोर टू एनसीईआरटी फॉर थ्योरी। समझ लो लास्ट पॉइंट लिखा है, थ्योरिटिकल जो भी चैप्टर मिले आपको समझ लो। मैं आपको बता रहा हूँ, साउंड, साउंड एक मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर चलता है, बहुत कम न्यूमेरिकल साउंड से निकलता है। आपने 8 में पढ़ रखा होगा साउंड को, साउंड एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, साउंड को आप एनसीईआरटी से पढ़े, ठीक है। कभी भी आपको साउंड मिले, कभी आपको ऑप्टिक्स मिले, ऑप्टिक्स आपको टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो, ठीक है। तो बट ऑप्टिक्स का थ्योरी जो है वो आप एनसीईआरटी से पढ़े। किसी भी टॉपिक का फिजिक्स में अगर लगता है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही, मतलब बेसिकली इसका बस थ्योरी, मतलब तो इसको पता नहीं चल रहा है कि कितना पढ़े, मतलब ये फैक्ट बेस्ड चैप्टर है। मतलब बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो भी फैक्ट बेस्ड चीजें है ना, उसको आप एनसीईआरटी को रेफर करें, ठीक है। नथिंग मोर देन एनसीईआरटी फॉर दोस थिंग्स, ठीक है। होपफुली आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। इतना आप कर लो भाई, अगर रिजल्ट नहीं होता है तो कमेंट करके बताना, रिजल्ट जरूर होगा। सिर्फ इन सब चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। नहीं होता है आप बताइए मेरे को क्या इसमें दिक्कत आ रहा है आपको फॉलो करने में,
मैं अपना 100% देके आपको हेल्प करूंगा। वैसे मेरा कोई बहुत काम होता है तो पढ़ाई वढ़ाई मेरा भी चल रहा है यार, समझ रहे हो ना। कोर्स भी बहुत टफ है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से टाइम निकाल के तुम लोग को दे रहे हैं यार टाइम। तो तुम लोग भी मतलब थोड़ा कॉपरेट करो, शेयर वेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, ठीक है। सर मेरे को मोटिवेशन वगैरह मिलेगा तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और कमेंट करो कि बताओ कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो उससे क्या होगा ना, मतलब हम तुमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो हम तुम्हारा प्रॉब्लम समझेंगे तब तो हम तुमको हेल्प करेंगे भाई, ठीक है। समझ रहे हो बात, मुद्दे की बात ये है। अब देखो, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है, बट अभी एनसीईआरटी तुमको देखनी ही नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लो चैप्टर, आपको देख के बहुत बच्चों को डर लगेगा, बहुत बच्चों को बहुत कुछ होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस खेलेगा। आपको अभी एनसीईआरटी देखनी ही नहीं है। क्या करनी है? देखनी ही नहीं है। मैंने जो अप्रोच बताया उसको फॉलो करना, तो अभी एनसीईआरटी को मैं बंद करता हूँ। मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा आपको। चैप्टर 8 है ये, क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक का मोशन चैप्टर है। पहला चैप्टर आपको एनसीईआरटी, पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा टीचर्स जो पढ़ाएंगे वो मोशन ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखो भाई, इस चैप्टर को कवर करने का मैं आपको एक दो चैप्टर दिखा दूंगा, ठीक है। अब मैं पता नहीं कितना आपको चैप्टर्स बता पाऊंगा, वो मेरे को भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा भी भाई पढ़ाई वढ़ाई होता है, मैं टाइम निकाल के ही करता हूँ तुम लोग के लिए। तुम लोग कोशिश करोगे हम जितना भी मैं पढ़ाऊँ आपको, जितना भी टाइम दूँ, उसमें अपना अप्रोच सीख ले, ठीक है। कहीं ना कहीं तो ट्यूशन पढ़ रहे हो, बस स्कूल में भी अगर आप पढ़ो, मैं तो अब स्कूल में ही पढ़ता था, मैं कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा हूँ साइंस वाइंस के लिए, ठीक है। तो मैं स्कूल की जो पढ़ाई था वही पढ़ता था। अब मैं थोड़ा डिफरेंट बुक सॉल्व करता था, तो ये सब काम मैंने किया। मैथ्स के लिए मैं ट्यूशन लिया था, बट साइंस के लिए कुछ ज़्यादा ट्यूशन था नहीं, ठीक है। 11 12 में लिया था, 9 10 में नहीं था। अब देखो भाई, बात समझो क्या बता रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे दे रखा है ना, वो टॉपिक, यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है, देखो एक सेकंड। हाँ, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। सबसे पहले तुमको एक बात सब पता होना चाहिए कि मोशन टॉपिक जब हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा इसमें पढ़ाने से अच्छा गुड नोट्स से पढ़ाना। रुक जा भाई, इससे बेटर होगा गुड नोट्स पे शिफ्ट करते हैं। रुक जाना यार थोड़ा। हाँ देख, देख, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोशन, ठीक है। अब देखो भाई, राइटिंग वीटिंग में फोकस मत करना भाई, हम इतना सुंदर से सजा नहीं सकते, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। मेरे को बस आपको समझाना है ऐसे से, ठीक है। आपको सुंदर से सजाया वजाया नोट्स अगर चाहिए होगा तो मेरे को भाई मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, मतलब कमेंट करना, तो मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे लेना, जो भी बात करना है पूछ लेना। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ बना दूंगा अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। वो सब चिंता मत करो, आप बस पढ़ो। नोट्स की टेंशन मत लो। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट मिल, मतलब नोट्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे भी, वहां से भी देख सकते हो। अब मेरे बात सुनो भाई, आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। देख भाई, मेरे को एज अ टीचर से ज़्यादा मेरे को एज अ भैया गाइड की तरह लेके चलो भाई, बहुत सीखने को मिलेगा। हम बहुत अजीब टाइप का बात भी करेंगे तुम्हारे साथ, मतलब तुमको समझाने के लिए, तो डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट, पहले ही बता दो, ठीक है। फिजिक्स से समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। देख, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आज तुम्हारा मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन को समझेंगे पहले, ये जो टॉपिक है मोशन क्या होता है नहीं होता है वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई किस तरह के क्वांटिटीज होते हैं अपने पास, ठीक है। मतलब फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फिजिक्स में। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटीज, ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स की क्वांटिटीज इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज जब कवर हो जाएगा तब हम लोग मूव करेंगे तुम्हारा वही, उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज हो जाने के बाद हम लोग मूव करेंगे तुम्हारा यूनिट्स पे। थोड़ा यूनिट्स को देखेंगे, यूनिट्स क्या होता है नहीं होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, अब हम लोग का शुरू होगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट, मेन मुद्दे के बाद यहाँ से शुरू होगी भाई। यहाँ से थोड़ा डार्क भी कर दे रहे इसको। मेन मुद्दे के बाद यहाँ से शुरू होगी भाई। क्या है यहाँ से आपको सबसे पहले अब जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आज हम लोग कवर करेंगे। जब तक नहीं होता तब तक हम तुमको बताएंगे भाई, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत मत लेना, समझाना का मेन मुद्दा समझ जाओ तुम। पार करने का तो ऐसे ही कर देते यार, उसको टेंशन नहीं है। उसके बाद अपन देखेंगे स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी को।
ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई, इसके बाद क्या टॉपिक, इसके बाद लेट मी चेक योर एनसीईआरटी वंस, क्या है इसके बाद। आपको ऑर्डरली पढ़ाने से आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखो भाई, इसके बाद है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपको समझना पड़ेगा भाई। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कुछ पढ़ाएंगे वो है तुम्हारा, आज क्या क्या कवर कर रहे हैं वो हम बता रहे थे कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन तक ही आज हम लोग पढ़ाएंगे। इसके बाद के जो टॉपिक्स है मतलब वेलोसिटी वगैरह के जो टॉपिक्स है, एवरेज एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के टॉपिक्स जो है, एक्सेलरेशन वगैरह का टॉपिक है वो लोग बाद में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे। इतना ही बात आज आपको अच्छे से समझ आएंगे भाई। पेशेंटली बैठो, पानी वानी ले लो अपने सामने। ठीक है। आई नो मेरा फेस तुमको नहीं दिख रहा है, बट भाई वॉइस से कनेक्ट करो अभी। फेस दिखाना अभी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मतलब उसके लिए मतलब थोड़ा कैमरा वैमरा का भी सही व्यवस्था चाहिए। वो करने में टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, वो हम धीरे धीरे करेंगे, देखते हैं तुम लोग का सपोर्ट कैसा आएगा नहीं आएगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। अब देखो भाई, यहाँ पे पहली बात करते हैं हम लोग, मोशन क्या होता है। देखो, अपने पास दो स्टेट होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग का टॉपिक्स है। ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का टॉपिक्स है जो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, रुक जा भाई, थोड़ा सुंदर से लिख देते, तुम लोग को भेजना हो तो भेज देंगे नोट्स। ठीक है, टॉपिक्स है। अब देख, इसमें हम लोग को जो बात सबसे पहले जो ध्यान रखनी होगी वो क्या है, देखो। सबसे पहले है कि मोशन। अब देखो, मोशन पे आने से पहले हम जिस टॉपिक पे तुमको आना चाहेंगे वो है कि तुम्हारा, हमारे हमारे बॉडी का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स आपको पहले समझ लेने होंगे। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये सब समझ में आना चाहिए। ऑब्जर्वर क्या होता है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स देखो। अगर आप रोड पे चल रहे हो, दिस इज, ये मान लो आपका सड़क है, रोड है। ठीक है। आप आप क्या कर रहे हो, आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, समझ लो। ये एक गाड़ी है, आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे मेरा नाम जॉय है तो मैं यहाँ पे हूँ, जॉय मान लो यहाँ पे है। ठीक है, ये जॉय है। ठीक, समझ आ रहा है, ये जॉय है। अब जॉय यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देख, जॉय को देखना है इस पेड़ को। ठीक है, जॉय को देखना है इस पेड़ को। ये मान लो यहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे ये पेड़ है। ठीक है, जॉय को देखना है इस पेड़ को। अब देख, एक बात तू बहुत ध्यान से समझ भाई। ठीक है, एक बात को तुम बहुत ध्यान से समझ। जॉय को देखना है इस पेड़ को, समझ आ रहा है। अब देखो भाई क्या हो रहा है। देख, इस पेड़ को, जॉय को देखना है, इतना समझ में आ रहा है। अब देख, जॉय बैठा हुआ एक कार में इस पेड़ को देख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंटली तुमको जो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जॉय जो है ये ऑब्जर्वर का तरह काम करेगा। किसकी तरह, बोलो बेटा। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा जॉय। जो पेड़ है, ये पेड़ किसकी तरह काम करेगा, पेड़ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, पेड़ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जॉय ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है। और आपका जो रेफरेंस पॉइंट, आपको क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन नहीं बोले रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, समझ रहे हो बात को। आपको रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बेटा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ये आपको क्वेश्चन बोल देगा। अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं बोलता है रेफरेंस पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको जो ऑब्जर्वर का पोजीशन होता है उसको ही आपको अपना रेफरेंस पॉइंट मान के चलना पड़ता है। ठीक है, क्या लिखोगे नीचे, लिखो, इफ नॉट मेंशनड। मोस्टली आपको क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं मिलेगा। इफ नॉट मेंशन देन टेक इट, then take it at the point of observe, at the point of observer। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आप उसको ऑब्जर्वर के पॉइंट पे लेके चलना। समझ आ रहा है ना ये बात। तो ये अपना एक और इम्पोर्टेंट टर्म रेफरेंस पॉइंट आ गया अपने पास। ये तीन चीजें आपकी माइंड में अच्छे से दिमाग ध्यान हो जाना चाहिए कि ये क्या है। तो अपने लिए इस क्वेश्चन में
अपने को नहीं बोला गया क्या है रेफरेंस पॉइंट। मान लो हम तुमको बोल दिए भाई ऑब्जर्वर से 5 मीटर दूर पे आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो ऑब्जर्वर से आप 5 मीटर दूर जाओगे। ठीक है, डायरेक्शन देखो हम कैसे यहाँ से चालू कर रहे हैं। हम ऑब्जर्वर से 5 मीटर दूर गए, 5 मीटर दूर पे क्या मिलेगा हमको? ऑब्जर्वर से 5 मीटर दूर पे हमको रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, 5 मीटर दूर पे मेरा रेफरेंस, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया मेरा ये, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन आपको चीजें पहले समझ में आना, तभी आपको पूरा मोशन समझ में आएगा भाई, वरना नहीं आएगा भाई। एक बात समझ लो, 9 का सबसे अगर टफ चैप्टर कोई है तो वो है अपने लिए मोशन। ये पहला चैप्टर है और आई थिंक ये टफ चैप्टर, मेरे को भी टफ लगता था उस टाइम पे, बिकॉज भाई इसको समझना थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे एज में, मैं समझ रहा हूँ। बट मैं जिस तरह से आपको सिखा रहा हूँ ना, सीखो चीजों को, समझ में आ जाएगा। अभी अगर नहीं आया ना भाई, 11 में बहुत दिक्कत हो, क्योंकि 11 में बेसिक्स आपको कोई नहीं बताएगा। आपको अगर बेसिक्स बोल रहा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट सारा तो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट सब बोल ही रहेगा। उसको तो छोड़ दो, आपको बेसिक क्लियर नहीं करेगा 11 कोई, बिकॉज 11 के फैकल्टीज के पास उतना टाइम नहीं होता है कि तुम्हारा वो एक एक बेसिक्स क्लियर करे, वो तुमको 9 से क्लियर करके आना है। यही यही डिफरेंस हो जाता है भाई अच्छे बच्चों में और तुम्हारे में। ठीक है, समझ रहे हो? तो बस ये तीन आपको पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ये पूरा फिजिक्स में काम आएगा, जितना जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये काम आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज, रेफरेंस पॉइंट समझ में आया। अब एक और हम एग्जांपल देते हैं। मान लो कि तुम अभी अपने रूम पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो क्या करोगे, तुम उस रूम के कॉर्नर पे देखो। एक कॉर्नर, उस रूम का जो कॉर्नर का जो लोअर वाला नीचे वाला पॉइंट होगा, ठीक है, उस पॉइंट को तुम देख रहे हो, तो तुम वो जो कॉर्नर वाला जो नीचे वाला पॉइंट है, वो हो गया तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट, तुम हो गए ऑब्जर्वर। ठीक है, तुम हो गए ऑब्जर्वर। रेफरेंस पॉइंट, क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, हम कुछ बोले ही नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट तुम अपने आप को लेके चलोगे, मतलब जहां से ऑब्जर्व करो, जहां से देख रहे हो, तो तुम अपना रेफरेंस पॉइंट लेके चलोगे। ठीक है, समझ आ गया? अगर हम बोलते हैं भाई नहीं, रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे किचन में है, तो तुमको, तुम्हारे किचन में है, तो तुमको क्या करना है, तुमको तुमको तुम है ऑब्जर्वर, ठीक है, बट तुमको रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे किचन में है, मतलब तुमको देखना है उस ऑब्जेक्ट, मतलब वो दीवार के उस कोने को किचन में जाके, तुमको यहाँ से देखने से नहीं होगा, समझ रहे हो? रेफरेंस पॉइंट से हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे जाके देखेंगे। ऑब्जर्वर का काम ही है कि ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट पे जाए फिर देखे। ठीक है, समझ रहे हो? अगर समझ में ना आए ये चीज, तो भाई हम जो चीज आपको बोले हैं ना, इसको आप रिप्ले करके देखना, ये आपको पढ़ा हुआ है ना वीडियो के फॉर्म में, रिप्ले करके देखना, समझ में आएगा चीजें, और इस एग्जाम्पल को एकदम दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो चीज आपको पता होना चाहिए वो है अपना जो स्टेट होता है। देखो भाई, अपना अगर हम लोग मोशन में बात करें, तो हम लोग का ऑब्जेक्ट, जो हम लोग बात किए ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट दो स्टेट में रह सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, तुम्हारा स्टेट ऑफ मोशन जो होता है, दो स्टेट ऑफ मोशन, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। देखो, इसलिए स्टेट ऑफ मोशन वर्ड नहीं बोलता, हम खाली स्टेट बोल रहे थे। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जनरली बोला जाता है, बट हम बोल रहे हैं खाली स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन बोलना ही सही होता है यार, एक्चुअली में स्टेट ऑफ मोशन इसे कहते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को ओबीजे करके लिखेंगे, ठीक है, समझ जाना तुम लोग। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है, ये क्या होता है? देखो, स्टेट दो तरह का हो सकता है ऑब्जेक्ट के मोशन का। एक ऑब्जेक्ट या तो खड़ा हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। अब देखो, रेस्ट और मोशन को समझने का भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अब देखो, इसमें एक एग्जांपल हम समझाते हैं। तुम मान लो बैठा हुआ है, तो तुम अपने आप को छोड़ो, तुम एक रूम पे बैठ के ही पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने जो फोन रखा हुआ है, ठीक है, फोन मान लो तुम टेबल पे रख दिए, तो फोन है जो है तुम्हारे सामने जिसमें तुम पढ़ रहे थे, वो क्या है, फोन रेस्ट में है। ठीक है, फोन तो रेस्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू होम, मतलब समझ रहे हो बात को? फोन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू, मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में फोन रेस्ट में है। ध्यान से समझना, फोन जो है वो रेस्ट में है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, बट वही फोन मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में? वही फोन मोशन में है अर्थ के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो? या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं, मून के रिस्पेक्ट में, बिकॉज तुम बैठे हुए हो तो अर्थ में, ठीक है, और मून के हिसाब से, और मून जो है वो तो मोशन, वो तो घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, तो वो जो फोन तुम जब जब तुम देख रहे हो फोन को, तो तुमको लग रहा है फोन तो रेस्ट में, फोन तो चल नहीं रहा है, फोन चुपचाप रुका हुआ है।
तो फुल रेस्ट में है। बट वही चीज जब तुम मून पे जाके देखोगे, तुम जब अपने कमरे में बैठ के देख रहे हो, तो तुमको लगेगा कि वो रेस्ट में है। बट वही चीज तुम जब, तुम्हारा अब हम लोग क्या किए भाई, देखो, तुम है ऑब्जर्वर, तुम्हारा हम लोग रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दिए, स्टार्टिंग तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट को कहीं और कर दिए। रेफरेंस पॉइंट को देखता है, स्टार्टिंग पॉइंट बोलना मतलब तुम्हारे लेवल पे ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट को एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। बट रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो, तुम अब क्या करना, तुम अपने रूम से उठ के किसी, मतलब तुम, अब तुम यहाँ से निकल के तुम जैसे मून पे जाके खड़े हो गए, और मून से अब तुम इस ऑब्जेक्ट को देखा, तुमको ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ दिखेगा, बिकॉज आपको पता है अर्थ रोटेटरी मोशन करता है। तो आपको मून से ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ दिखेगा, बिकॉज ओवरऑल अर्थ घूम रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हो और तुम कहाँ से देख रहे हो चीजों को। मतलब इसी को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मी द फोन इज एट रेस्ट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू यू द फोन इज एट रेस्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू मून द फोन इज मूविंग। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। मान लो तुम एक गाड़ी में जा रहे हो, तो तुम एक गाड़ी में जा रहे हो, मान लो, सुनो, मान लो तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम जा रहे हो अपने अपना कॉलेज के लिए, तुम जा रहे हो नानी घर, ठीक है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ नहीं जा रही, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे बगल में बैठे हुए, तुम्हारी मम्मी बाहर खड़ी है, ठीक है। तो तुम जा रहे हो कहाँ, नानी घर। अब ट्रेन क्या हुआ, ट्रेन चलना चालू कर दिया, फिर ट्रेन चालू हुआ, तुम्हारी मम्मी तुमको टाटा करते रही, टाटा करते रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी मम्मी को क्या दिख रहा है बाहर से, तुम्हारी मम्मी को बाहर से तुम्हारी मम्मी को स्टेशन से दिख रहा है कि तुम जा रहे हो। बट तुम्हारे पापा को क्या दिख रहा है, तुम्हारे पापा को दिख रहा है कि तुम तो वहीं बैठे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो जा ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो? तुम्हारे पापा को दिख रहा है कि तुम वहीं बैठे हो, तुम रेस्ट में हो। बट तुम्हारी मम्मी को दिख रहा है कि तुम जा रहे हो, तुम मोशन में हो, ठीक है। तो मतलब तुम चल रहे हो, तुम्हारा कुछ वेलोसिटी है, तुम्हारा कुछ स्पीड है, ठीक है। बट तुम्हारे पापा को क्या दिख रहा है, तुम्हारा स्पीड जीरो है, तुम बैठे हो, तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो बात को? यही है भाई स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो भाई, इसको समझना डिफिकल्ट होता है, हम तुमको लिटरली बता रहे हैं, इसको आप एक बार अगर पहली बार सुन रहे हो मेरे मुंह से ये सब चीजें, डिफिकल्ट है समझना, वेरी डेफिनेटली डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्ट ना लगे तो फिर तुम नॉर्मल बच्चा नहीं है भाई, तुम गॉड गिफ्टेड है, समझ लो, उस टाइप का केस है, ठीक है। ये चीज समझना डिफिकल्ट है, बट मैंने जो बोला आपको, मैंने जो एग्जांपल्स दिए, उस एग्जांपल्स को आप रिप्ले करके देखिए बार बार, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, आपको आएगा समझ में, मैं गारंटी लेता हूँ आएगा, ठीक है। बट बार बार देखो समझने के लिए, ठीक है। समझ में आया? एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। तुम सोचो, तुम खड़े हैं, तुम खड़ा हुआ है एक झूले के सामने, मेला गए हो देखने, ठीक है, मेला देखने गए हो ना भाई। अब तुम एक झूले के सामने खड़े हो, तुम्हारा भाई, तुम्हारी मम्मी, तुम दोनों चले गए झूला झूलने, तुमको डर लगता है, तुम नहीं गए, तुम बाहर खड़े होके उन लोग को देख रहे हो, वो मान लो ब्रेक डांस में बैठे हैं, ठीक है। अब एक बात, ब्रेक डांस छोड़ो, तुम ड्रैगन जो था ड्रैगन मानो, ठीक है, ड्रैगन में बैठे हुए, एक बात समझो चीज यहाँ पे, क्या, तुमको क्या दिख रहा है, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी मम्मी को हटाओ, भाई जो है, वो तुम्हारा भाई जो है वो मोशन में है, वो उसका मतलब वो मोशन में तुमको दिखेगा, मतलब वो चलता हुआ दिखेगा तुमको, मतलब मोशन में है, ठीक है। तुम्हारा भाई का कुछ वेलोसिटी है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब तुम्हारा भाई मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू यू। बट तुम्हारा तुम्हारा एट द सेम टाइम, तुम्हारी मम्मी को क्या दिखेगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी मम्मी को दिखेगा कि तुम्हारा भाई तो उसके, मतलब तुम्हारी मम्मी को दिखेगा कि मेरा बेटा, मतलब तुम्हारा भाई जो है उनके मम्मी के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके मम्मी के बगल में बैठा हुआ है तेरा भाई, तो तुमको दिखेगा, उसको मतलब तुम्हारी मम्मी को दिखेगा कि वो तुम्हारी मम्मी के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है तुम्हारी मम्मी के हिसाब से तेरा भाई का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो रेस्ट है, वो क्या है, रेस्ट है, ठीक है। तो अब देखो, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका क्या है कि विद रिस्पेक्ट तो तुम्हारा भाई का जो, योर ब्रदर इज एट मोशन विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू यू, जैसे मैं मेरे रिस्पेक्ट में मेरा भाई मोशन में, तो मैं बोलूंगा कि माई ब्रदर इज एट माई ब्रदर इज एट माई ब्रदर इज इन मोशन with respect to me, and at the same time my brother is at rest with respect to my mother, ठीक है। वो तेरा भाई तो बैठा हुआ मदर के रिस्पेक्ट में। तो ये बात अगर समझ में नहीं आ रहा भाई, दोबारा देखना, मैं 3 एग्जाम्पल दे चुका हूँ, नहीं आए तो फिर भी बताना कमेंट में, हम और कुछ तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रेस्ट के साथ ऑलवेज एट लगाना और इसके साथ ऑलवेज इन मोशन लगाना, ठीक। इतना समझ में आया भाई? आ ही गया होगा, नहीं आएगा तो वापस रिप्ले करना, ऑप्शन तो है तुम्हारे पास, हमारे पास नहीं था उस टाइम पे। अब देखो,
अब हम लोग मोशन की डेफिनेशन वगैरह देखते हैं यार। देखो मैं मोशन का डेफिनेशन सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मोशन का डेफिनेशन समझ में आ ही जाएगा होपफुली। देखो मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन if its position is changing, समझ लो, an object is said to be in motion if its position is changing constantly with respect to a stationary object taken as reference point and time। ठीक है, यहाँ पर टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, ऐसे ही लिखते हैं अपन तो लिख देंगे। बट यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेफरेंस पॉइंट। हम आपको बताएं रेफरेंस पॉइंट, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट। अब देखो हम आपको मोशन का डेफिनेशन लिख के भी दिखाते हैं बिकॉज आप लोग भी स्टार्ट किए हो पढ़ना, मेरे को पता है बहुत टफ लग रहा है चीजें। सुनो ना, अगर आपको ज्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है और अगर वीडियो अगर टफ लग रहा है ना चीजें, तो मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको मैं दो ही चीज पढ़ाऊंगा, दो ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। समय है अपने पास, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। बट आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, मेन बात ये है, मेरा मुद्दा यही है। देखो, तो ठीक है, उसके बाद देखो, और थोड़ा चेष्टा करो कि मतलब थोड़ा कोशिश करो कि आप मैथ्स पे थोड़ा फोकस करो यार। ठीक है, मैथ्स अच्छा रहेगा तो फिजिक्स में मजा आएगा। अभी तो इजी लगेगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में बात करें। देखो मोशन की डेफिनेशन पे जाते हैं। मोशन मतलब है ऑन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, an object is said to be in motion if its position if its position changes continuously, if its position changes continuously with respect to स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे सीखो, मूविंग ऑब्जेक्ट पे अभी तुम मत सीखो, वही लेवल में सिखाया जाएगा। उसको वो जो टॉपिक आएगा मूविंग ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा रिलेटिव मोशन, ठीक है। मतलब रिलेटिव मतलब दोनों ही चलेगा। उसमें तुम एक मतलब दोनों कार चल रहा है, समझ लो तुम एक कार ए और बी दोनों कार चल रहा है, तुम बी कार में बैठे हो, तुम बी कार में बैठ के ए को देख रहे हो, तो तुम खुद भी चल रहे हो ना भाई, तुम खुद भी मोशन में और ए भी मोशन में है। तब तुम देख रहे हो, वो 11 में पढ़ेंगे अपन। अभी हम लोग सिर्फ पर्पट पढ़ेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, ध्यान रखना अभी के लिए, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस, टेकन देखो यहाँ पे लिख भी दिया, टेकन एज अ रेफरेंस, टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? देखो भाई मेरे लिए इतना लिखना संभव नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, आपको मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, वो नोट्स आपको भिजवा ही दूंगा, और मैं यहाँ पे फोटो खींच के चिपका दूंगा जो भी चीजें होगी, ठीक है ना। जो भी स्मॉल स्मॉल मैं बोल रहा हूँ अभी आपको, वो मैं फोटो खींच के चिपका दूंगा यहाँ पे। और जो चीजें मुझे लगेगी वो मैं लिखूंगा, बट आपको नोट्स मिल जाएगा, आप बस मेरे को देखते रहो, मतलब स्क्रीन पे देखते रहो। नेक्स्ट जो है ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, अपने से लिख देना भाई जो भी आपको लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिख देना यार, फ्लाइंग बर्ड्स, मूविंग ट्रेन, रनिंग मैन, ये सब मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मोशन के साथ आपको रेस्ट भी पता होना चाहिए, मैं रेस्ट भी बता दिया भाई। रेस्ट में वही करना भाई, यही सेम। ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद, इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। जो आपको बताया, जो आप सीखा वही लिख जो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द ऑब्जर्वर फ्रॉम स्टैंडिंग एट द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मतलब उसका पोजीशन अगर चेंज होगा तो मोशन में, पोजीशन चेंज अगर नहीं होगा रेस्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटीज जो है, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोशन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं भाई फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटीज में आपको डेफिनेशन में अभी नहीं पूछेगा, बट आपका जो मोशन का डेफिनेशन है वो आपके आपके लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो भाई फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम लोग केस बात करें, तो मतलब जो भी क्वांटिटीज को आप नाप सकते हो भाई, मतलब नाप सकते हो, मतलब जो भी क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में गिनते हैं। जैसे डिस्टेंस नाप सकते हैं, इसके अलावा तुम्हारा स्पीड हम लोग नाप सकते हैं, एक्सेलरेशन नाप सकते हैं, ये सारे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं, ठीक है। बट जो क्वांटिटीज को हम लोग नाप नहीं सकते वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आते हैं। जैसे अगर हम बोले कि
समझ लो, अगर हम लोग बात करते हैं, मान लो अगर हम लोग बोले मतलब मतलब इमोशन इमोशन को आप नाप नहीं सकते हो। ठीक है, इस बेस्ट एग्जांपल है इमोशन। आप खुश हो, कितना खुश हो बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कम खुश हूँ। कम कितना, आप एक्चुअल नंबर नहीं दे सकते हो ना, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया? आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज लिख लेना है, और लिखने का समय नहीं है। दो चार एग्जांपल लिख लो। लेंथ, मास, राइटिंग बहुत गंदा यार, डॉक्टर है ना। टाइम, ये सब एक्सेट्रा। समझ आ गया? नेक्स्ट, देखो फिजिकल क्वांटिटीज को लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। अभी आपके लेवल पे दो ही तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अब क्वांटिटीज भी लिख लेना यार एग्जाम में, ठीक है? इधर में भी क्वांटिटीज लिख लेना, हम टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है? इतना तो जो बोल रहे लिखते जाना खुद से भी। ठीक है, अब देखो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मास होता है। मतलब समझ रहे हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है। मास होता है, गलत बोलना है, फिजिकल मतलब ये वो क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा। ठीक है, मतलब उसका मतलब मेजरमेंट होगा, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? देखो, नंबर होगा मतलब है एक्चुअली करेक्ट वर्ड बोला कि इसका मैग्नीट्यूड होगा, बट इसका डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज में कहते हैं। और वो क्वांटिटीज जिसके पास दोनों चीज होगा, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। दोनों सुनने में आपको बराबर लगता था बचपन से ही। अभी आपको दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो गया है ना। हाँ, तो बस अभी आपको अलग करना होगा दोनों को। तो देखो भाई, हमने क्या बोला आपको? स्केलर क्वांटिटीज, दोज quantities those quantities quantities those quantities which have magnitude का स्पेलिंग आता है ना भाई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। those quantities which have magnitude and direction are called scalar quantities। और इधर में हो जाएगा those quantities, अरे ये गलत हो गया, एक सेकंड। those quantities which have only magnitude एंड आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो नो डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। those quantities which have both magnitude and direction are called vector quantities। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है डिस्टेंस। अभी आपको बताएं कैसा है, नहीं है। इसका है डिस्प्लेसमेंट, पता है मतलब, अभी आपको पता चलेगा ये सब धीरे धीरे, ठीक है? ये सब तुम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, समझ स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज का अगर हम लोग सिंबल विम्बल की बात करें, नहीं काम आएगा आई थिंक तुम्हारे को। जैसे मान लो कि वेलोसिटी स्पीड, देखो इस यहाँ पे अगर स्पीड को लिखे, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। बट यहीं पे अगर डिस्टेंस को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर स्पीड को लिखेंगे तो वी लिखेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग स्पीड को वेलोसिटी को लिखेंगे तो वेलोसिटी के ऊपर हम बार लगाएंगे। ये जो बार लगा रहे हैं इसी ये वेक्टर क्वांटिटीज को रिजेंबल करता है। ठीक है, इतना जान लो भाई। इतने भी तुम्हारा काम हो जाएगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अब कौन सा क्या क्वांटिटी वो हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी आप इतना समझो कि कौन सा क्या मतलब स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ों पे हम लोग बढ़ रहे हैं वो है तुम्हारा सिस्ट यूनिट्स। भाई समझ में आ रहा है ना चीज़ें? थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मेरे को भी लग रहा है। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे तुमको, तो जहाँ तक लग रहा है हम कल मतलब नेक्स्ट जब भी, कल नहीं पता कब फ्री होंगे। तो यूनिट देख लो क्या होता है भाई। देखो यूनिट दो तरह का होता है, एक आपका मतलब सीजीएस यूनिट होता है, और एक आपका ऐसा यूनिट होता है आपके लेवल पे। और भी बहुत मतलब यूनिट्स का कोई पता मतलब माई बात नहीं है, मतलब यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स का कोई माय बैक नहीं है भाई। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि तुम्हारा यूनिट जो होता है
आपके लेवल पे आप जान के चलो भाई दो ही होता है, बट यूनिट से कोई हमारी बात नहीं, बहुत सारा बना सकते हो। आपके जो काम आता है वो आता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, और एक होता है एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ये होता है तुम्हारा सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम यूनिट। ठीक है। अब यूनिट्स मतलब वो टूल्स होता है विच कैन बी यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटी में हमको नंबर मिलेगा, उसके बगल में जो सेंटीमीटर मीटर ये सब भी लगा होता है, यही यूनिट होता है। ठीक है ना। हाँ। अब देखो मेरे को, ठीक है, ये दोनों आपको यूनिट से पता चल गया। अब देखो, एक बात तुम ध्यान से सुनो, ये आपका ज्यादा काम नहीं आएगा यूनिट्स वगैरह। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट काम आएगा, आपको एक काम की बात आज हम पढ़ा दे रहे हैं, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आपको आज हम सोच रहे हैं आज हम छोड़ देंगे, मतलब हाँ, इसके बाद हम बंद कर देंगे यार, क्योंकि वेलोसिटी वगैरह तुम पहले ये दो टॉपिक लो, मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद वेलोसिटी मूव करेंगे। तो एक दिन में देना सही नहीं है बच्चों ने हम लोग। देखो डिस्टेंस, और इधर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को डिफरेंस करने पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। देखो डिस्टेंस क्या होता है भाई, सबसे पहले तू प्रैक्टिकली सोच, हम इंग्लिश बाद में बकेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकली देख, तू ए पॉइंट से तेरे को बी पॉइंट तक जाना है, इधर में भी सेम है, ए से बी तक जाना है। सबसे पहले पता ये कौन सा क्वांटिटी, मैंने ऊपर ही बताया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये वाला एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, स्केलर वेक्टर? नहीं आ रहा बताइए। जब स्केलर है मतलब मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नंबर है, डायरेक्शन नहीं है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है। अब देखो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों आता है यहाँ पर, देखो तुम यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना, तुम यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम इस डायरेक्ट पाथ का भी यूज कर सकते हो। तुम यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम ऐसे भी जा सकते हो घूम के, तुम यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम ऐसे भी जा सकते हो, या फिर तुम यहाँ से जाने के लिए यहाँ ऐसे भी जा सकते हो। तुम्हारे पास चार पाथ पे आ गया। अब तुम्हारे पास देखो चार पाथवे है। ठीक है। और यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हारे पास एक फिक्स पाथवे होना बहुत जरूरी है, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन था नहीं, अंधाधुन गए, ऐसे ऐसे जैसे मन के गए। बट इसके लिए तुमको स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें हम लोग शॉर्टेस्ट को ही लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग, एक बात ध्यान रखना, हम लोग शॉर्टेस्ट पाथवे होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथवे बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। ये होता है, और इसका ये एक्चुअली डेफिनेशन हम लिख दिए तुम्हारे यहाँ पे, ये जो है, ये एक्चुअली तुम्हारा डिफाइन है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन है तुम्हारा, ये शॉर्टेस्ट पाथवे बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका जो डिफाइन होगा वो होता है, तो यहाँ पे तुम किसी से भी जा सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए ये ऐसे, बट ऐसे आप करके डिस्प्लेसमेंट पे नहीं जा सकते भाई, एकदम गलत हो जाएगा। नहीं जा सकते, एकदम गलत हो जाएगा भाई, इससे मत जाना कभी। बट इसमें सारा ही एप्लीकेबल है, सारा ही सही है, समझ रहे हो? बट इसमें गलत है, इसमें तुम्हारा बस ये वाला सही है डिस्प्लेसमेंट का। समझ समझ आया? अब देखो हम जो बता रहे हैं लास्ट में भाई, अब वीडियो एंड करना बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो। ठीक है, चल देखते हैं। डिफाइन इसका जो है, इसका होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ वाला वर्ड इसमें याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल मत बोलो, पाथ लेंथ तो बोलना बहुत जरूरी है। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्स बाय अ बॉडी, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, बाय अ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इसी को कहते हैं हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट इसका कहते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भाई? समझ में आ रहा है डिस्टेंस? हाँ। इसमें आपका डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो आपको स्केलर फैक्टर से पता चल जाना चाहिए। डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस में बोलना डायरेक्शन डिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, ये वाला डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, इधर वाला जो है वो तुम्हारा डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ठीक। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस ऊपर बार से। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट, एस ऊपर बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना आज समझो भाई। ठीक है, इतना ही तुम्हारे लेवल पे काम आएगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे लेवल पे काम नहीं आएगा। समझ आया? अब देखो, और डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ पे बिटवीन देखो,
ये सेकंड वाला है ना, वही यहाँ पे है सेकंड वाला, देखो यही वाला सेकंड वाला है, बट ये यहाँ पे काम आया, बट तुम्हारा वो काम नहीं आया। ठीक है, इतना ही समझो। ठीक है, इतना आज करा दिया भाई, अच्छे से जाके घर पे एक बार देख लेना, मतलब जो भी है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, इतना पहले घुसा दो दिमाग में, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग भाई ये वाला आज नहीं किए, ये वाला भी आज नहीं किए, हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हम देखेंगे तो करेंगे इस सब चीज़ों को। अभी आपको इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा शेयर करो जरूर करना है यार, लोगों का हेल्प हो मेरे